Good morning, student. Once again, welcome you. Uh, Today we will discuss mass action law and charge carrier density for a semiconductor. This is the third lecture for electronic device code EC304 under the RGPV syllabus. I, Sanjay Khadagade, Assistant Professor, Oriental Institute of Science and Technology. Uh, Today we will discuss mass action law, statement of mass action law, why we use the mass action law, and proof of the mass action law. And we will discuss charge carrier density for a semiconductor, and it is find out the relationship between minority and majority carrier density. First of why the mass action law. अगर हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल की बात करें तो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में एन टाइप में मेजोरिटी आपके चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजोरिटी आपके होल्स होते हैं. तो मेजोरिटी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल है उनका कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द डोपिंग. जितने आप डोपिंग करते हो उसकी हेल्प से हम उनके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है इट इज़ फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मास एक्शन लॉ. तो मास एक्शन लॉ की हेल्प से हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि एन टाइप और पी टाइप में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली होते हैं उनकी कैरियर डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड आउट करते हैं यूज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द मास एक्शन लॉ. स्टेटमेंट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ free electrons concentration and the free hole concentration is equal to a constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration. Means n dot p is equal to ni square, where n is the electrons concentration, p is the hole concentration, and it is equal to the ni square. Ni is the intrinsic carrier density and it is the function of temperature. Means when we temperature increase, intrinsic carrier density is also increase. Next, proof of mass action law. In case of intrinsic semiconductor, we know the number of free electron concentration is always equal to the number of free hole concentration. For pure silicon and germanium, that is the intrinsic semiconductor, this equation is always considered. Number of free electrons is equal to number of free holes. So we can write n is equal to p and both are equal. So we write again, consider it ni, and n is the intrinsic carrier density. Let due to the thermal energy, the generation of charge carrier is G and recombination of charge carrier is consider capital R, and under thermal equilibrium we know G is equal to R. Means जितना आपका जनरेशन रेट है रिकॉम्बिनेशन रेट भी आपका इक्वल नहीं होगा, और जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के, और जो आपका रिकॉम्बिनेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा होल कंसंट्रेशन के. तो वी कैन राइट आर proportional to n dot p. If we remove the proportionality constant, we write here r, and r is the proportionality constant. Similarly, generation rate, generation energy and generation charge carrier is given by G is equal to R into Ni, and according to the thermal equilibrium condition G equal to R, put the R and G value here, so we get Ni square is equal to Np. This is the mass action law. Next topic is the charge carrier density for semiconductor material. First we will see the electrical neutrality concept. अगर आप एक कंडक्टर की बात करते हैं और उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया है और उस कंडक्टर में से करंट I फ्लो रहा है, तो अगर I इस टर्मिनल पे I है और इस टर्मिनल पे भी आपका करंट सेम आ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स at the conductor one end is always is equal to the leaving end number of electrons. मीन्स अगर यहाँ से आपके 100 इलेक्ट्रॉन्स आपने इंटर करा है और 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से आउट हो रहे, तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टर है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज वो स्टोर नहीं कर रहा है. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करा है और यहाँ से आपके 50 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउट हो रहे, तो इसका मतलब है कि 50 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कंडक्टर ने क्या किया, स्टोर किया. ये आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट होता है.
आप कंडक्टर के केस में। सेम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का इक्वेशन होती है, डेट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। और अभी आपने देखा कि जो आपका एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी होते हैं, आपके डोनर और एक्सेप्टर आयंस होते हैं। तो अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपका कितना होगा, एन डी प्लस पी। एन डी इज द डोनर आयन कंसंट्रेशन, पी इज द होल कंसंट्रेशन जी, और ये आपका माइनॉरिटी के लिए है तो माइनॉरिटी होल कंसंट्रेशन है। सिमिलरली आपका जो टोटल निगेटिव चार्ज होगा वो एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन प्लस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन है फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल, वेयर एन डी इज द डोनर कंसंट्रेशन, एन इज द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन एंड एन इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो आपका एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में बेसिकली हम जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके कंसंट्रेशन को डिराइव करना चाह रहे हैं और मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में रिलेशनशिप कैरियर डेंसिटी की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपका प्योर मटेरियल होता है, उसमें डोनर और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन ऑलवेज कितना होता है, 0। और अभी हमने देखा कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो पी और एन है, होल कंसंट्रेशन और आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोथ आर दी इक्वल। अगर मैं मास एक्शन लॉ की बात करूं तो मास एक्शन लॉ यहाँ पे है, इसमें एन और पी की वैल्यू इक्वल टू पुट करूं तो आइदर पी स्क्वायर या एन स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन आपकी सिंपली आ रही है पी इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन आई। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो एन आई इज दी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रेंसिक आपके चार्ज कैरियर है उसकी डेंसिटी है। नाउ एन टाइप मटेरियल की अगर मैं बात करूं, दो केसेस हम डिराइव करते हैं। पहले एन टाइप मटेरियल की बात करो, एन टाइप में जो आपका माइनॉरिटी होता है वो होल होता है, तो माइनॉरिटी होल का कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करने करेंगे। और सेकेंड केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर करेंगे और उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एक्सेप्टर आपके आयन से उनका कंसंट्रेशन 0 होता है और जो डोनर आपकी इक्वेशन अब बचेंगी तो एन डी इज इक्वल टू एन होता है। तो जो आपकी इक्वेशन थी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम दोनों केसेस के लिए वैल्यू पुट करें, एक बार आपका एन टाइप मटेरियल के लिए और एक बार पी टाइप मटेरियल के लिए, तो ये आपकी इक्वेशन आएगी मास एक्शन लॉ और इसके थ्रू हमने ये डिराइव किया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो टर्म है it is called the minority carrier density of the whole in n type material, and this expression is provide the electrons minority electrons concentration in p type material। और यहाँ से इन दोनों रिलेशनशिप से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर आपका है वो डोपिंग लेवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम डोपिंग लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, एन और एन डी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पी और एन की वैल्यू आपकी डिक्रीज होते जाएगी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।